Hello students, welcome back my YouTube channel. Today we solve exercise 2.3 which is related to the linear equation, and we will see that how we can check our answer. So let we start now. Solve the following linear equation and check your result. लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है और फिर हमें अपने आंसर को भी चेक करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18. सबसे पहले हम यहाँ पे जो लाइक टर्म है उनको अरेंज करेंगे. सो यू कैन राइट इट 3x, यहाँ से ही 2x जो है हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं. सो इट विल बी माइनस 2x इक्वल्स टू 18. Now you can see here 3x minus 2x will be x equals to 18. It will be our answer. Now we will check it is right or wrong. So check. You can see there are two parts, left side and right side, and we can see here value of x here 18. Now we will put the value of x here 18. We have here 3x equals to 2x plus 18, and the value of x here 18. So we will put here value of x. आइए x की वैल्यू पुट कर लेते हैं. 3 into 18 because x value here 18 equals to 2 into x value 18 plus 18. Now you can see 18 3 ja 54 equals to 18 2 ja 36 plus 18. Now you can see 54 equals to 36 equals plus 18 will be 54. Both are equal. So verify. Now we will see second part. 5t minus 3 equals to 3t minus 5. First of all you can see here, यहाँ पे जो like term है हम उन्हें एक तरफ कर लेंगे. So we can write here 5t, यहाँ से 3t जब इधर आएगा तो बन जाएगा माइनस 3t इक्वल्स टू माइनस 5. जब माइनस 3 यहाँ से ट्रांसफ़र होकर इधर आएगा तो ये बन जाएगा प्लस 3. 5t माइनस 3t, रिमेनिंग पार्ट 2t इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 3 विल बी माइनस 2. यहाँ से जो t की वैल्यू होगी वो बन जाएगी माइनस 2 डिवाइड बाई 2. देन वी गॉट हियर माइनस 1. Now we will check your answer. चेक करने के लिए हमें जो t की वैल्यू है हमें क्वेश्चन में पुटअप करनी होगी. सो वी कैन सी हियर 5t माइनस 3 इक्वल्स टू 3t माइनस 5. पुट वैल्यू ऑफ t. आइए t की वैल्यू पुट कर लेते हैं. 5 इंटू टी की वैल्यू है माइनस 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 3. t की वैल्यू आपको पुट करनी है माइनस 1 माइनस 5. when the 5 multiply minus 1 we got here minus 5, and after then minus 3 equals to 3 multiply minus 1 we got here minus 3, and after then minus 5. You can see minus 5 minus 3 will be minus 8, minus 3 minus 5 will be minus 8. Both are equal here, so our answer is right. आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. इन्हीं के बेस पे आपको 3rd 4th 5th सॉल्व करने हैं. नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 here. 8x plus 4 equals to 3 bracket x minus 1.
प्लस 7। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के बाहर 3 है, इसका मतलब ये 3 जो है वो x से भी मल्टीप्लाई होगा और -1 से भी मल्टीप्लाई होगा। सो वी कैन राइट हियर 8x plus 4 equals to 3 multiply x. We got here 3x, 3 multiply -1 -3 plus 7. 8x plus 4 equals to 3x -3 plus 7. We got here plus 4. Now we will start to arrange them because यहाँ पे जो 3x है और 8x है वो लाइक टर्म है, तो यहाँ से हम 3x को 8x की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं और 4 को जो है +4 की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो वी कैन राइट हियर 8x - 3x इक्वल्स टू 4 - 4। 8x - 3x ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 4 - 4 0। सो वैल्यू ऑफ x विल बी 0/5, क्योंकि यहाँ पे 5 जो है वो मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। 0 में आप किसी भी इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो 0 होगा। नाउ वी विल चेक आवर आंसर। चेक करने के लिए आपको x की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में पुट अप करनी है। ओके, सो आवर क्वेश्चन इज 8x + 4 equals to 3x - 1 plus 7. We will put the value of x here. Put value of x. Now we will put the value 8 into x value 0 plus 4 equals to 3 x value 0 minus 1 plus 7. 8 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, 0 plus 4 will be 4 equals to 0 minus 1 will be -1. So -1 multiply 3, we got here -3 plus 7. 4 equals to -3 plus 7. यहाँ से बन जाएगा +4. You can see left side and right side are equal here. So verify. That means x value 0 is the right answer. Now we'll solve 7th part. X equals to 4/5 bracket x plus 10. You can see here, सबसे पहले यहाँ से हम 5 को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पे 5 जो है वो डिनोमिनेटर है। जब यहाँ ट्रांसफ़र होगा तो ये x से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो 5x ओके इक्वल्स टू 4 bracket x plus 10. Now you can see 4 will be multiply inside because जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई इंटीजर हो तो वो इंटीजर ब्रैकेट के अंदर सभी नंबर से मल्टीप्लाई होगा 1 by 1. सो 5x इक्वल्स टू 4 multiply x 4x, 4 multiply 10 then 40. Now we will arrange here. लाइक टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, 4x को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। So 5x minus 4x equals to 40. 4x minus 5x minus 4x will be x here. Then value of x 40. Now we will check your answer. We have question 5x equals to 4x plus 10. Put वैल्यू ऑफ x, हम x की वैल्यू पुट करेंगे। लेफ़्ट साइड और राइट साइड अगर इक्वल आ जाता है तो हमारा जो आंसर है वो राइट है। सो 5 इंटू एक्स वैल्यू 40 इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट वैल्यू ऑफ x here 40 plus 10. You can see 45 are 200 equals to 4 bracket 40 plus 10 will be 50 and 54 are 200. Both are equal. So our answer is right. Okay. Now we solve last two question. Question number 8. 2x upon 3 plus 1 equals to 7x upon 15 plus 3.
फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अरेंज देम, बिकॉज यहाँ पे 7x/15 एंड 2x/3 ये लाइक टर्म है, सो हम इन्हें अरेंज कर लेंगे एंड कांस्टेंट विल बी ट्रांसफर हियर. ओके, 2x/3 यहाँ से जब ये ट्रांसफ़र होगा बनेगा -7x/15 इक्वल्स टू 3 + 1 जब ये ट्रांसफ़र होगा -1. नाउ वी विल टेक द LCM here. LCM of 3 and 15 will be 15. When we divide 15 by 3 we got here 5 time, and when the 5 multiply 2 we got here 10x minus 15 divided by 15 it goes to 1 time, and 1 multiply 7x, then we got here 7x. 3 minus 1 will be 2. Now you can see 10x minus 7x, यहाँ से ये बन जाएगा 3x/15 इक्वल्स टू 2. 15 को जब हम यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 3x इक्वल्स टू 30, and the value of x here 30/3. When we divide it we got here 10, so value of x here 10. Now we will check your answer. Two x/3 plus 1 equals to 7x/15 plus 3. ये हमारा क्वेश्चन था. इसमें हम x की वैल्यू 10 पुट करेंगे. पुट वैल्यू ऑफ x here. आइए यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर लेते हैं. 2 × 10 ये बन जाएगा 20/3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7 × x. x की वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो जब 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 70/15 प्लस 3. अब यहाँ से हम LCM ले लेंगे. LCM जो है वो आएगा 3, एंड वी राइट हियर 20 प्लस व्हेन द 3 multiply 1 वी गॉट हियर प्लस 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे जो LCM होगा वो 15 होगा, एंड वी राइट हियर 70 प्लस 15 3 जा 45. नाउ यू कैन सी 20 + 3 will be 23/3 equals to 70 + 45 we got here 105/15. when we cut it then we got 23/3. both sides are equal here, so our answer is right. Verify. Now we solve the last part. 3m equals to 5m minus 8/5. यहाँ पे लाइक टर्म को हम अरेंज करेंगे. यहाँ से 5m को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, सो वी कैन राइट हियर 3m minus 5m इक्वल्स टू -8/5. 3m minus 5m जो है वो बनेगा -2m इक्वल्स टू -8/5. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. m इक्वल्स टू 8 यहाँ से जब आप 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा, सो 5 × 2, सो m वैल्यू विल बी 8/10. नाउ विल चेक योर आंसर. 3m इक्वल्स टू 5m माइनस 8/5. आंसर चेक करने के लिए यहाँ पे हम m की वैल्यू 8/10 पुटअप करेंगे. सो यू कैन सी हियर 3 × 8/10 इक्वल्स टू 5 × 8/10 minus 8/5. Now you can see 8 3 जा 24/10 equals to, you can see, we can cut it here, so we get here
8/2 माइनस 8/5। यहाँ से आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम विल बी 10 here, then we write here when the 10 divided by 2 5 time and 8 5 ja 40 here, minus 10 divided by 5 we got here 2 time and 2 multiply 8 we got here 16. Now you can see 40 minus 16 we got here 24/10. Both are equal, so our answer is right. Remember that जब भी आपको रिजल्ट को चेक करना है तो आपको क्वेश्चन में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपको पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है। लेफ़्ट साइड और राइट साइड अगर इक्वल आ जाता है इसका मतलब आपका आंसर जो है वो राइट है। आई होप आपको ये वीडियो में क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही।